दोस्तों, ज़िंदगी में पैसा सब कुछ नहीं है। ज़िंदगी में पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे जीने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। कि ज़माना कभी सूरत नहीं देखता है, कि ज़माना कभी सूरत नहीं देखता है, तो हैसियत भी ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अनदर एपिसोड ऑफ मनी माइंडसेट मास्टरी विद विकास जोशी. Friends, we have started this series with the sole purpose of self-development, self-growth, change of mindset from restricted mindset to growth mindset, from financial accumulation to financial stability. In the process, we have learned how to set the goals. We have learned how to set the path to reach the goals. We have learned how to evaluate the path intermittently. थोड़े थोड़े अंतराल में हमें अब देखना भी पड़ेगा कि हम अपनी गोल की तरफ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं. So also we made ourselves self-aware that we are aware of our strengths and weaknesses, of our limitations, of our positive points, so that we can work on any negative points if we are having one, so that we can change the failures into the opportunities to work for. And in the process we also learned that major part which is the hindrance in your growth or our growth is a self-belief we are carrying on. These are limiting beliefs. Self-belief in the positive way is a very necessity. That is what we are changing these limiting beliefs into your strength parts of beliefs. So friends, limiting beliefs, these are from you are carried in your mind from childhood experiences, family experiences, past experiences, society experiences, school experiences, family members experiences, past experiences. कुछ लोगों ने डाल दिए मन में, कुछ हमने खुद ही बना लिए. हमने कभी सोचा ही नहीं whether these are necessity. Have we analyzed this belief whether they are necessity in our growth or whether they are hindering our growth? Both ways we have not analyzed. And friends, let me tell you frankly and surely that these limiting beliefs become the major hurdle in your growth. As if whatever you feed your mind, the mind acts accordingly. So if you have already kept in your mind or you have already fed your mind, अपने मन में ऐसे घर बना दिए हैं, जैसे ऐसे शब्दों के नहीं, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं करना आता है, मेरा प्रॉब्लम बहुत है, ये जो सारे शब्द आपने इस्तेमाल किए सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं जो आपने अपने मन में भर के रखे हुए हैं. एनालाइज कीजिए whether those are helping you towards your growth or you are not at all going further. Stagnancy की तरफ तो नहीं जा रहे हो. Stagnancy, oh, that is a bigger problem friends, because 101% it leads to stress, and stress is the major part of any of your problems in your life. Sorry. So, when we are moving forward, we have to address those limiting beliefs, and I have taken every effort and prepared every video on all the probable limiting beliefs that one might have. बहुत सारा रिसर्च करके मैंने ये उसमें डाला है. I have noted them down and addressing them in each and every video. Why? Because when you address this limiting belief, I assure you that no one can restrict you from your growth. The self-confidence will be doubled up, speed up. बहुत जोरों से आप चले जाओगे उसी रास्ते में. You will be on the runway of your growth process. Hence the limiting beliefs are the major part, and I have made a separate video on the limiting beliefs. Why the limiting? What are limiting beliefs? What I mean to say of meaning of limiting beliefs? Why we have to address them, and how they affect your growth. So also, I insist in my every video. I do insist. Please keep a personal journal. Personal journal is personal journal. That is your reflection part. Your personal reflection. आपको पता होना चाहिए आपने गोल क्या रखा है, आप कहाँ जा रहे हो, दिन भर में आपने क्या किया और कैसे चल रहा है. Whether you are moving towards your goals on daily basis or not.
That will help you to move forward, friends. It is a necessity. Many people advocate, maybe may not be. I am suggesting and I insist, जो मैंने खुद ने किया मुझे मिला, आपको भी ज़रूर सक्सेस मिलेगा. प्लीज ट्राई इट आउट. मेंटेन द सेल्फ पर्सनल जर्नी. Taking forward of the limiting beliefs part. Today's limiting belief is interesting. That the people carry in their mind that there is an earning ceiling that I will never go above. अजीब प्रकार का लिमिटेड बिलीफ है ये, कि हमने ही तय कर दिया कि अर्निंग जो मैं खुद कमाऊंगा उसके लिए भी एक लिमिट है, उसके आगे मैं नहीं जा पाऊंगा. Who said that? How can you restrict your income? How can you restrict your income? Just because you are having the limiting belief कि नहीं उसके आगे मैं जा ही नहीं पाऊंगा. क्यों नहीं जा पाओगे? इसलिए नहीं जा पा रहे हो बिकॉज दिस इज लिमिटिंग बिलीफ यू हैव मेड बाय कंपेयरिंग विथ अदर्स. आपने सोचा, एनालाइज नहीं किया, प्रॉपरली एनालाइज नहीं किया. आई हैव एडेड द वर्ड प्रॉपरली इसके लिए क्योंकि वो एनालिसिस आपको कंसिडर करके करना है, आपके सर्कमस्टांसेस देख के करना है. यू कैन नॉट लिमिट योर इनकम ना. पैसे को मतलब लक्ष्मी आ रही है आपके पास, आप बोल रहे हो नहीं मैं उतना ही नहीं ले सकता क्योंकि मुझे मालूम है मैं इसके आगे जा ही नहीं पाऊंगा. अब लक्ष्मी बोल रही है नहीं भैया तू जा पाएगा, मैं आ रही हूँ ना तुम्हारे पास, एंड यू आर बिजी इन सेइंग नो टू योरसेल्फ. नहीं इसके आगे नहीं जा पाऊंगा. दैट इज यू आर रेस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ. ऑल योर पॉसिबिलिटीज, all your skills that are helping you to grow further, but because of this limiting belief, of absurd limiting belief that there is an earning ceiling that I will never go above that. अपने आप ही तय कर लिया. प्रोफेशन में रहोगे तो आपने तय कर लिया कि बस इतना ही मैं गोल कर पाऊंगा, उतना ही मेरा गोल है, आगे मेरे को नहीं जाना है. नहीं जाना है, नहीं मैं जा ही नहीं पाऊंगा. अरे कैसे नहीं जा पाओगे? Why do you say, think that have you given a thought on this question of why? That is what I stated. Analyze your self-limiting beliefs. Now this limiting belief is an absurd thing. It is a mindset that suggests that an individual believes that there is a maximum limit to the amount of income they can earn. अरे बाप रे, ऐसा होता है क्या? Once you are in the process of development, income comes as along with it. That is what the development is. पर्सनल डेवलपमेंट हो ही रही है, लेकिन साथ में इनकम भी तो आना है ना. नहीं ऐसा मैं इतना ही कर पाऊंगा, तो सेल्फ डेवलपमेंट रोक रहे हो. सो इट इज अ माइंडसेट पार्ट. दैट इज व्हाट आई स्टेटेड. द लिमिटिंग बिलीफ इज द माइंडसेट पार्ट. इज इन दिस प्रोसेस व्हाट हैव यू ट्रेन्ड योर माइंड? You have trained your mind to a limit, to have a limit on your income. Means you have prepared yourself to be on the runway, but you have already set your mind कि नहीं मुझे रनवे तक ही जाना है, मुझे उड़ान नहीं भरनी है, क्योंकि मेरा तो उसके ऊपर मैं इनकम कमा ही नहीं पाऊंगा, तो उड़ान भर के करूंगा क्या? ओह, so you are limiting, when the sky is the limit, you are limiting yourself, stating that you cannot earn more because there is a ceiling. Who said so? नहीं, ऐसे लोगों ने कहा था कि तू ऐसा इतना नहीं कर पाएगा. उन्हीं को तो दिखाना है कि तुम कर पाओगे, वही तो करना है. How can anybody judge you? Why is this? Why he or she or they are stating that you cannot do? Just because they are judging. How are they judging? Because you are presenting them. See, एक आम आदमी जैसे प्रेजेंट करेगा वैसे ही लोग उसको देखेंगे. अगर आप खुद ही लोगों को बोलते रहोगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो अपने मन को तो पता ही रहे हो, तो लोग भी वैसे ही जज कर रहे हैं ये नहीं कर पाएगा. तो तुम्हारे मन को जो तुमने समझाया, लोगों ने कंफर्मेशन दे दिया, अब आगे बढ़ना तुम्हारा बहुत मुश्किल हो गया. Why? Because the limiting belief that you nurtured in your mind is pulling you back from your growth. This belief can stem from various factors such as upbringing,
मैंने कहा ना कि चाइल्डहुड है, मेमोरीज है, सोसाइटल प्रेशर्स है, पास्ट एक्सपीरियंसेस है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस है, स्कूल एक्सपीरियंसेस है, कॉलेज एक्सपीरियंसेस है, लाइफ एक्सपीरियंसेस है। जो एक्सपीरियंस किया उसके बाद हमने एनालिसिस नहीं किया, हमने वो मन में घर बना के रख दिया, अरे बाप रे ऐसा हो सकता है, नहीं नहीं इसके आगे नहीं जा सकते हम लोग। जस्ट आस्क द क्वेश्चन व्हाई, फाइंड आउट अ लॉजिकल आंसर टू इट, कंसिडरिंग योर सर्कमस्टांसेस एंड योर एम्बिशंस। वही तो हमको करना है। दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड दिस सीरीज, दैट इज व्हाट आई स्टेटेड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस पॉइंट, दैट वी स्टार्टेड दिस सीरीज फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ होनी है तो एनालिसिस करना ही है। आस्क द क्वेश्चन व्हाई, फाइंड आउट द लॉजिकल रीजन फॉर एवरी लिमिटिंग बिलीफ्स एंड प्रोसीड फर्दर। अ फिक्स्ड अर्निंग्स, सीलिंग्स कैन नॉट बी द लिमिटिंग पार्ट ना। अर्निंग्स के लिए सीलिंग डाल दोगे तो मतलब पैसा आने के लिए तैयार है हमारे, लेकिन तुम बोल रहे हो नहीं 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 उतना ही मैं ले नहीं सकता क्योंकि मेरे को लिमिट इतना ही है। हे भगवान, द गॉड इज रेडी टू हेल्प यू टेकिंग, सिंस यू आर टेकिंग एफर्ट्स इन द प्रॉपर डायरेक्शन विथ कमिटमेंट। बट इफ यू आर कैरिंग दिस लिमिटिंग बिलीफ that the earning has got a ceiling, then friends, not even God will be able to help you, because you are not helping yourself, you are not ready to remove that limiting belief. Now this limiting belief in other way, अगर दूसरी बाजू से ओर से सोचो तो क्या कर रहा है ये लिमिटिंग बिलीफ? ये तो एम्बिशन ही आपका रोक रहा है ना। एम्बिशन आपको था कि गगन छू जाऊं, रनवे पे चल भी दिए, लेकिन ये लिमिटिंग बिलीफ ने रोक दिया। अरे बाप रे, रनवे में आ गया, बस बस बस, अभी नहीं, उड़ान नहीं भर दी है, एम्बिशन ही रोक दी। सो लैक ऑफ एम्बिशन बिकॉज ऑफ दिस लिमिटिंग बिलीफ, रिमूव दिस लिमिटिंग बिलीफ, सेट द एम्बिशन, मूव ऑन, लेट स्काई बी द लिमिट एंड यू विल एंजॉय द जर्नी एंड द डेस्टिनेशन ऑल्सो। नाउ इसी वजह से ये जो लिमिटिंग बिलीफ आपने मन में बना के रखा है, इसमें कॉमन फियर होते हैं। मेरे को अगर नहीं हो पाएगा तो, मैंने तो बोला ही था। और उसके ऊपर ऐसे बोलने वाले भी होते हैं, मैंने भी कहा था, यस वी डिड टेल यू, हियर यू कैन नॉट डू सच थिंग्स, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। द पीपल आर ऑल्सो कंफर्मिंग। व्हाई दे आर कंफर्मिंग? बिकॉज यू योरसेल्फ हैव ट्रेन्ड इन दैट वे, यू हैव ट्रेन्ड योर माइंड, यू हैव ट्रेन्ड योर माइंडसेट to be restricted, and with this fear you're proceeding further. Are you proceeding? No. The fear is more about failure than of success, than of hurdles, than of navigating life through the challenges. मतलब डर होता है, चैलेंजेस आएंगे तो डर लगता भी है, लेकिन अगर जिसमें हिम्मत हो तो अपना लाइफ निकाल ही लेता है। बिकॉज हिम्मत है, कमिटेड है, डिसाइडेड है, करना तो है। लेकिन अगर ये लिमिटिंग बिलीफ रहेगा तो ये जो बाकी सारी चीजें है वो अपने आप सिमट जाएगी, रुक जाएंगी, बिकॉज ऑफ द ओनली फियर। विद दैट वी ऐड अ फेल्यूर। डर नहीं, मैं डरता नहीं हूं बिल्कुल, अरे मैं बहुत हिम्मत वाला आदमी हूं, मैं डरता नहीं हूं। लेकिन क्या है, अगर मैं नाकामयाब हो गया तो, अरे भाई यही तो मैं कह रहा हूं, तो यही तो डर है तुम्हारा, फियर ऑफ फेल्यूर, जस्ट बिकॉज अननेसेसरी लिमिटिंग बिलीफ्स यू आर कैरिंग अलोंग। ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या हो गया? नो, सिंस यू आर लिमिटेड योर एम्बिशंस बिकॉज ऑफ दिस लिमिटिंग बिलीफ, यू हैव टू सेट द एम्बिशंस, स्काई शुड बी द लिमिट। फियर ऑफ फेल्यूर इज लीडिंग टू द लिमिटेड ग्रोथ। अब सब लिमिट ही कर दिए हो तो ग्रोथ कितना होगा? तो गोल्स कितने सेट करोगे? आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड इन मेनी ऑफ माय वीडियोस दैट वंस यू अचीव वन गोल, सेट अनदर गोल, ट्राई समथिंग बिगर, celebrate your successes and you will enjoy. Every word is correct, friends. You will enjoy every second of your time, every second of your life. So with this, ये हम जब कर रहे थे, we were moving towards financial stability.
अब अगर ये लिमिटिंग बिलीफ कैरी करो तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या, वो तो डोल्ड्रम में चली गई. द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पार्ट इज ऑलरेडी पुट इनटू कोल्ड स्टोरेज. व्हाई? बिकॉज विद दिस लिमिटिंग बिलीफ यू आर हैविंग द फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी. अब तुमने लिमिट तय कर दिया कि नहीं मेरा अर्निंग्स इतना ही हो पाएगा, तो यू कैन नॉट सेट अनदर गोल्स. You see, any example of budgeting, once you achieve one success, you achieve another success, you achieve another success. Take any part or any friend or any person who is successful, any country who is successful. And now I am talking in bigger terms. They have set the goals and achieved them, irrespective of the challenges they might have faced. Because they didn't have this limiting belief. They didn't put the earning ceiling part. They didn't put the full stop or ceiling part to the growth. It is an ongoing process, friends. So you have to grow. Because of this financial insecurity, you are unable to develop yourself. Then the only part remains is to tell the stories to every other person. मैं ऐसा था, मैं कर सकता था, लेकिन अरे भाई तू किसने रोका तुमको? Who stopped you from doing the things? Why are you interested in telling your stories to somebody else? Instead of telling the stories, let it be written by you. Irrespective of so many challenges, I am successful. That should be the spirit. That will erode away the financial insecurity part, friends. That is what we are working on. Now this part comes because unknowingly we are comparing ourselves. बचपन से हमने देखा है, घर में देखा है, दोस्तों में देखा है, अपने सोसाइटी मेंबर्स में देखा है, फैमिली मेंबर्स में देखा है. कंपैरेटिव फिगर्स हमेशा रहते हैं, है ना. जैसे लोग बोलते हैं कि अरे देखो उनका बच्चा कैसे पढ़ रहा है, तुम नहीं पढ़ रहे हो. अरे उनका बच्चे की स्किल्स अलग है, मेरे अलग स्किल्स है. बट वी आर मेड टू कंपेयर. And in the process, no one was aware what was going on in your mind. Your mind was being trained in the negative way. The comparative analysis of two different things. Apples being compared to mangoes. The result is 0. Because two different things cannot be compared. Now this comparative analysis unknowingly took a part in your mind. जिसे मैं कहता हूँ लिमिटिंग बिलीफ. अब मन में धारा ही बना के रख दी कि नहीं वो तो सक्सेसफुल हो गया, वो तो होशियार है ही, क्यों तुम होशियार नहीं हो? गॉड हैज गिवन यू द सेम ब्रेन. जो होशियार आदमी उसको भी एक ही दिमाग है, तुम्हारे पास भी एक ही दिमाग है. तो व्हाट इज देयर दैट ही इज सक्सेसफुल, यू आर नॉट? बिकॉज ही इज नॉट वेस्टिंग टाइम कंपेयरिंग हिमसेल्फ विथ यू, बट यू आर वेस्टिंग टाइम बाय कंपेयरिंग योरसेल्फ विथ हिम. यू आर अ सेट ऑफ स्किल्स इज डिफरेंट. Your life is different. Your goals are different. Success is an ongoing process and a right to every person. भगवान ने अगर डिस्टिंक्शन नहीं किया है दो लोगों में, तो why are you distinguishing yourself from others? God has given you the same things. 2 eyes, 2 ears, 2 hands, 2 legs. Some challenging situations may arise, but they have got the skills to overcome them. Hence it is said, the God helps them, those who help, they help themselves. अब तुम क्या कर रहे हो? फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, माइंडसेट करके नहीं मैं नहीं कर सकता, सीलिंग इसके ऊपर रख नहीं, इसके आगे मैं कमा नहीं पाऊंगा, इसके आगे मेरे फाइनेंशियल गोल्स नहीं हो सकते. दैट इज व्हाट यू आर ट्रेन्ड योर माइंडसेट. व्हाट इज गोइंग टू हैपन? रिमेंबर, गॉड ऑलवेज सेज यस टू व्हाटएवर यू से. हिंदी में कहावत है, नियति सबको हाँ बोलती है. अब जो बोलो नियति हाँ बोलने वाली है. सो डोंट ब्लेम गॉड और नियति, दे हैव डन देयर जॉब. यू हैव टू परफॉर्म. लाइफ इज योर्स, फ्रेंड्स. सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन कंपेयरिंग विद अदर्स. दैट इज sheer वेस्टेज. You don't know what the circumstance that that person is, what set of skills he is having, how he has come to that level. You have no idea. So also he is not having idea of what your circumstances you are in. Two different things. Don't compare. Don't waste your time in this comparison.
This will lead you nowhere. Now this comparative analysis, बचपन से आ गया, चलो ठीक है, अभी निकाल दो उसको मन से, नहीं चाहिए. Do not at all. Look in the mirror. Do you see the other person in along with you when you see in the mirror? No. The mirror tells the truth. That is you. And if you are seeing the other person, then you have to remove it from your mind. मिरर नहीं बता रहा है, आईना नहीं बता रहा है आपको, आपका मन बता रहा है, क्योंकि मन में धाराएं बना के रख दी है. यही तो हम एड्रेस कर रहे हैं, लिमिटिंग बिलीफ. अब इस वजह से कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, चलना तो पड़ेगा ना. जैसे कि अभी लोकल में, मुंबई में लोकल में अगर चढ़ना है तो ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स इट इज टू रश. नहीं, अब इतने रश में तो मैं नहीं जाऊंगा, मुझे खाली लोकल ट्रेन चाहिए, ऐसा तो होगा नहीं ना. तो रिस्क तो लेना पड़ेगा. दैट इज व्हाट आई कॉल कैलकुलेटेड रिस्क. बस जाना है, अब इतने लोग जा रहे हैं, मैं भी चला जाऊं. एक कॉमन एग्जांपल मैंने बताया. If you want to move on towards richer things, you have to move on from your limiting beliefs to self beliefs. That is what we are working on. Now this limiting belief is also limiting your assertiveness. मैं कर सकता हूं, ये जो चाहिए था उसे रोक रहा. नहीं, मैं नहीं कर सकता, अपने आप ही आ गया. अभी तो मेरा लिमिट हो गया, मेरा इतना ही लिमिट था. कैसे इसे तय कर दिया तुमने? यू कैन नॉट. फ्रेंड्स, प्लीज डू नॉट रेस्ट्रिक्ट योर ग्रोथ by some absurd beliefs. That is called what I call limiting beliefs. And with this, that comes a very absurd thing, perfection. नहीं, एकदम परफेक्ट होना बहुत जरूरी है. अरे परफेक्शन इज नेसेसरी, बट परफेक्शन इज अ रिलेटिव प्रोसेस. अरे काम करोगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि गलतियां हैं, सही है, कैसे पता चलेगा? सो जो गलतियां थी उसे हमको सुधारना है. दैट इज द प्रोसेस. तभी तो परफेक्शन रीच पाओगे. पहले ही डिफाइन कर रहे हो, मैं परफेक्ट हूंगा तभी काम करूंगा. अरे वो तो होने वाला नहीं है कभी. आई एश्योर यू, इफ यू आर वेटिंग फॉर योरसेल्फ टू बी परफेक्ट पर्सन, देन यू विल बी वेटिंग फॉर लाइफ लॉन्ग एंड अदर्स विल गो फॉरवर्ड. और आप सोचते ही रहोगे, अरे इसने कर दिया, उसने कर दिया, तुम उसी जगह पे हो, वेटिंग फॉर परफेक्शनलिज्म. Now this process is called negative mindset. क्योंकि अपने आप को इतने रेस्ट्रिक्शंस में डाल दिए हो कि आगे बढ़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बना दिया. किसने? तुमने, खुद ने. You yourself have decided not to grow by this restricted limit, that earning ceiling is there. मेरे earnings के लिए बस इतना ही है, इसके आगे मैं नहीं जा पाऊंगा. इसीलिए तो मैंने कहा कि अब जोरों से निकल पड़े, रनवे पे पहुंच गए, लेकिन उड़ान भरने से रह गए. क्यों? क्योंकि अपने आप को बोल दिया, नहीं, मैं उड़ान नहीं भर पाऊंगा, मैं आसमान को छू नहीं पाऊंगा. क्यों नहीं छू पाओगे? कोशिश करनी है, लिमिटिंग बिलीफ निकालना ही पड़ेगा. इसीलिए तो मैंने कहा, जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं है, पर जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है. कि जमाना कभी सूरत नहीं देखता है तो हैसियत भी जरूरी है. I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Money Mindset Mastery with Vkas Joshi. Till then, bye bye. Enjoy the day, enjoy the life, friends. It is a one-time activity. Do enjoy.